شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ بہت شکریہ کہ آپ پھر سے ایکٹیو ہو گئے اور ہم اپنے سیشن کو شروع کرتے ہیں اور اسی معاملے کو اپنے سامنے ڈسکشن میں لے کے آتے ہیں۔ ابھی جب آپ گئے تھے پانی پینے کے لیے تو میرے ساتھ بات کسی نے مجھے کہا کہ جی پھر مجھے دعا نہیں کرنی چاہیے، تو میں نے کہا کہ یا آپ کو کس نے کہا کہ دعا نہیں کرنی چاہیے؟ جی آپ جس طرح کہہ رہے تھے اس سے لگ رہا تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا نہیں کرنی چاہیے یا خدا کو نہیں کہنا چاہیے۔ میں اس بات کو ضرور آپ کے ساتھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا، اور اس کا کچھ بھی مطلب نہیں۔ اور پھر دعا جو ہے اس کا مطلب ہے دھیان گیان کرنا۔ دھیان کرنا کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرا کام کیا ہے۔ گیان کرنا، علم ہونا کہ مجھے اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ اور خدا کے حضور جو بات کرنی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شکر گزاری کرنا کہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے یہ کام مجھے دیا ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ زبور آپ پڑھیں تو وہ بھرا پڑا ہے شکر گزاری سے۔ اور داؤد کہتا ہے کہ پرند چرند دیودار ندیاں نالے پھول پھل سب تیری تعریف کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے جو تعریف نہیں کرتا بلکہ صرف اور صرف اپاہج شخص کی طرح، اپاہج بچے کی طرح ہر وقت ری 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 کرتا رہتا ہے، جیسے مفلوج ہوتا ہے کوئی، جیسے اپاہج ہے، جیسے پیرالائز ہو چکا ہے کوئی، وہ پانی بھی نہیں اٹھا کے پی سکتا۔ اس کے باپ کو، اس کی ماں کو سارا کچھ اس کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا رویہ، ہمارا سبھاؤ، ہمارا تعلق خدا کے ساتھ اس طرح سے ہے، اے خدا یہ کر دے، اے خدا یہ کر دے، اے خدا یہ کر دے، پاک روح تو یہ کر دے، پاک روح تو یہ کر دے۔ اس طرح کا رویہ اپاہج رویہ ہے، مفلوج ہو چکے۔ تو جب ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں تو خدا کی تعریف کریں، تو نے مجھے ہاتھ دیے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہودی جب کسی کو کہتے ہیں کہ خدا تجھے برکت دے تو وہ اس طرح نہیں کہتے کہ خدا تیرے کام کرے، وہ کہتے ہیں کہ تیرا سسٹم ٹھیک رہے۔ جب کہتے ہیں خدا برکت دے، جس کا مطلب ہے تیری سوچ میں بڑھوتی ہو کہ تو ٹائم پر ڈاکٹر کے پاس جائے، تیرے کان صحیح سنیں، تیری آنکھیں صحیح دیکھیں، تیرے مسل ٹھیک کام کریں۔ برکت کا مطلب ہوتا بڑھوتی، جو اس نے تیرے اندر رکھا ہے وہ تیرے اندر بڑھے، تو ٹھیک ٹائم پہ کھانا کھائے۔ میں بھی کئی دفعہ ایسے نہیں کرتا، اکثر لوگ ٹائم پہ نہیں کھاتے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک متوازن غذا کھائیں، یہ آپ کو نالج ہو، آپ نہائیں ٹھیک ٹائم پہ، کپڑے ٹھیک طرح سے پہنیں، اور یہ آپ کو جو کچھ اس نے دے دیا ہے، کپڑے اس نے دیے ہیں، یہ نالج اس نے دیا ہے،
ये सारा कुछ उसने भर दिया इंसान के अंदर, परिंद चरिंद के अंदर। देखो परिंदे अपने टाइम पे उठते हैं, आप घड़ी का टाइम देख लो, सुबह 4:30 5 बजे, पौने 5 बजे तक परिंदे उड़ चुके होते हैं। उन्होंने कौन से ऑफिस में जाना है, उनका कौन बॉस है, किसने उसकी हाजिरी लगानी है, किसने उनको तनख्वाह देनी है? एक इंसान है, इसकी अपनी तरतीब है, कहता खुदा को है। तो इस अपने तौर तरीके को ठीक करें। मैंने नहीं कहा कि आप दुआ ना करें, लेकिन दुआ क्या करें कि आप खुदा के बॉस बन चुके हैं, खुदा के हाकम बन चुके हैं। आप खुदा को काम की लिस्ट दे रहे हैं, दिन चढ़ गया है और बस अब लिस्ट बना दी है कि ये भी तू कर रहा है खुदा, ये भी तू कर, और वो एक घर की बंदी की तरह आपके सामने खड़ा है और आपका हुक्म मान रहा है। वाह, कैसी बात है, कैसी हमाकत है आपकी। आप खुदा को काम पे लगा रहे हैं, उसने आपको कहा है ये काम करो। दुआ का मतलब है प्रेज करना, और अरामी ज़बान में जो इसका मस्दर है, जो इसकी बेस है, अब इसको भी गलत तरीके से ना ले लेना, वो है कि पिछली बातों को याद कराना कि तू कितना अजीम है, तूने मुझे बेटे दिए, मुझे इस लायक बनाया कि मुझसे बेटे हों, बेटियां हों। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैंने घर बनाया है। तूने मुझे इस लायक बनाया कि आज मेरे पास गाड़ियां हैं। तूने इस लायक बनाया कि आज मेरे पास चर्च है। तूने मुझे इस लायक बनाया कि मेरा एक दायरा अबाब इस तरह से खूबसूरत है, दोस्त है, रिश्तेदार है। तूने मुझे रिश्तेदार दिए हैं, मैंने जो तूने दिए हैं मैंने उनको कायम रखा है। ये नहीं कि खुदा रिश्तों को भी कायम रखे, रिश्ते उसने दिए हैं, रिश्ते आपने कायम करने हैं। बीवी उसने दी है, बीवी के साथ आपने उस तरह की मोहब्बत, प्यार, चाहत ज़ाहिर रखना है। बच्चे उसने दिए हैं, तरबियत आपने करनी है। ये वो उसने सब कुछ आपके अंदर भर दिया है। गाड़ी के अंदर एक दफ़ा सारा उसका जो मैकेनिज़्म है वो सेट कर दिया है, चलाना आपने है। इंजीनियर बार बार उसमें कभी फिल्टर सेट कर दिया, कभी इंजन सेट कर दिया, कभी टायर सेट कर दिया, कभी उसका कुछ सेट कर दिया, कभी कुछ सेट कर दिया। ये ऐसे ही नहीं करता, उसने एक दफ़ा सेट कर दिया है, चाबी आपको दे दी है, अब आपने करना है, गाड़ी को ड्राइव करना है। कितनी स्पीड पे करते हैं ये आपको सेंस होना चाहिए, कहाँ पे ब्रेक लगानी है, कहाँ पे रुकना है। इसी तरह से खुदा ने सारा कुछ जो 6 दिन किया, और जो मसीह खुदावंद ने कहा कि मेरा बाप, यूहन्ना की इंजील में 5वें बाब में लिखा है, मेरा बाप अब भी काम करता है। वो जो उसका काम है वो आपके काम नहीं करने, वो उसकी अलूहियत के काम हैं, वो आपको समझ नहीं आ सकते। आपके अंदर का सिस्टम, जिगर और जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, लीवर, पित्ता, लबलबा, ये जितना जो काम कर रहे हैं, आप इसके फंक्शन को ठीक नहीं समझ सकते, वो क्योंकि खुदा ने फिट किया है। इसी तरह से जो कुछ उसने फिट कर दिया है वो अपनी तरतीब से चल रहा है, आप खराब करते हो उसको बेतरतीबी की वजह से। ठीक सोना नहीं है, ठीक खाना नहीं है, ठीक पहनना नहीं है, ठीक पीना नहीं है, ठीक सुनना नहीं है, ठीक देखना नहीं है, ठीक करना नहीं है, और इल्ज़ाम खुदा पे, तू ये कर दे, तू ये कर दे। ये ज्ञान है, ये ध्यान है कि आप अपना किस तरह से मुआयना करते हैं, अपने आप पर किस तरह से ध्यान दे रहे हैं। कभी आपने नाखूनों को देखा है, बाज के इस तरह से नाखून बढ़ जाते हैं कि उसके अंगूठे में फंस जाते हैं, हाथ के नाखून खराब हो जाते हैं।
पलकें टेढ़ी होके आंखों में लगती हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, कान के बाल उल्टे होके कानों के अंदर जा रहे हैं, तो ये भी खुदा करे? ये आपका काम है, अपने आप को मेंटेन रखना। शफा का काम आपने शुरू कर दिया। ये काम है डॉक्टर्स का। आपका क्या काम है? किसी को डॉक्टर के पास लेकर जाना। मैंने कई एक पादरियों का सुना है, लोगों ने मेरे साथ बात की है, बिशप साहब फलां पादरी हमारे पास आया था, हमारी बेटी को शुगर थी, उसने इतना इमोशनल कर दिया, कहा अब से बस ये ठीक है, अब इसको दवाई की ज़रूरत नहीं। वो बेचारी की दवाई रोक दी, खुदा ने इसको ठीक कर दिया है, मैंने खुदा को कहा है, खुदा ने ये कर दिया। हेपेटाइज ना लोगों को करें, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाओ। अब बाइबल में लिखा है जहां पर दवाइयों की ज़रूरत है दवाइयां इस्तेमाल की गई हैं, जहां रोटी की ज़रूरत है रोटी मसीह ने खुद कहा, यायर की बेटी को जिंदा किया और उसको कहा घर वालों को इसे कुछ खाने को दो। लाजर को जिंदा किया, कहा इसके बंधन खोल दो। क्या यीशु बंधन नहीं खोल सकता था? उसका काम है जो उसने किया है, जो कर चुका है, उसने जिंदगी हमें दी है। लिखा है उसने जिंदगी का दम फूंका, जिंदगी का दम फूंका जानवरों में भी। लेकिन हम किसी दूसरे टाइम पे जरूर इस पर बात करेंगे कि फिर आदम के अंदर कौन सा दम था। एक जिंदा रहने का दम है, एक वो दम है जो आदम के अंदर था। तो बड़ी समझदारी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें, खुदा को समझें कि वो क्या कहता है। समुद्र की मछलियां बड़ी बड़ी मछलियों को मछलियां खाती हैं। हर रोज टनों के हिसाब से मछलियां खाई जाती हैं। इंसान भी मछलियां खा रहे हैं, मछलियां मछलियों को खा रही हैं, कमती नहीं होती, क्योंकि उसने सिस्टम इस तरह से बनाया है। उसने कोई कारखाना नहीं लगाया कि वो एक प्रोडक्शन चल रही है। जिसका हुक्म मिल गया है वो रुकते नहीं हैं, वो चलते जाते हैं। आप मेरा ये जो फोकस है वो इस बात पे है कि मेहरबानी करके आप खुदा की आवाज़ को समझें, ये पखंडबाजियां छोड़ें, लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ें, उसका हुक्म मानते हैं। कोई ऐसा फरिश्ता नहीं जो उसका हुक्म ना माने, कोई ऐसी पावर नहीं जो उसका हुक्म ना माने। एक वाहिद इंसान है जो खुदा के हुक्म के खिलाफ चलता है, बल्कि खुदा को भी ऑर्डर कर रहा है। इसलिए दुआ जरूर करें। दुआ का मतलब है ध्यान ज्ञान करना, खुदा से बातें करना, और फिर अमली तौर पर काम करें, प्लानिंग करें। यीशु 40 दिन बियाबान में दुआ कर रहा था। यही मुखालफिन कहते हैं कि अगर वो दुआ कर रहा था, अगर वो खुदा था, तो किससे मिन्नतें कर रहा था, किससे मांग रहा था? भाई वो ध्यान ज्ञान कर रहा था, वो ध्यान कर रहा था अपने टाइम पर। ज्ञान है उसका, उसको इल्म है कि उसने क्या करना है, वो अपनी प्लानिंग करता है। खुदा प्लानर है, वो प्लानिंग के साथ चलता है। उसने शिगिर्दों को कहा कि आज हमें सामरिया से होकर जाना ज़रूर है, क्योंकि वो प्लान कर चुका था। आप पैदाइश की किताब पहला बाब पढ़े, आपको पता चलेगा उसने किस तरह से प्लानिंग में सारा काम किया है। एक इंसान है जो कोई प्लानिंग नहीं करता, मुंह उठाया और चल पड़ा। चलो जी साली के घर चलें, चलो जी साले के घर चलें, चलो जी चाचू के घर चलें, चलो जी शॉपिंग के लिए चलें, चलो जी ऐसे ही
सड़कों पर घूमने के लिए चले। ये है एक ऐसी मखलूक जो खुद खराबियां करती है और खुदा के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। ओ माय गॉड, ओ मेरे खुदा, ओ मेरी तो किस्मत ही ये है। उसने किसी की किस्मत खराब नहीं बनाई, उसने खूबसूरत बनाया, सबको बेहतरीन बनाया है, इल्म से भर दिया है, इख्तियार दिया है। और नुकसान किसने किया है? ये सिखाने वालों ने। कोई कलीसिया का बाप बने, कोई कलीसिया की माँ बने। माँ का रोल है केयर करना, बाप का रोल है इख्तियार रखना और लोगों को बताएं ये नहीं करना, ये इख्तियार है, नहीं करना। आपने तो लोगों को लगा दिया शफाओं पे। ये हॉस्पिटल जो है ये कोई मोटर मैकेनिक का काम नहीं करते। आप लोगों को कहो कि आप हॉस्पिटल जाओ, हमारे पास आओ, हम आपको खुदा की कुदरत, खुदा की अजमत, खुदा का जलाल, खुदा की खूबसूरती, खुदा का रोब सिखाएं। चर्चेज में खुदा की खुदाई का जिक्र करें, खुदा की अजमत का जिक्र करें। ये ना जिक्र करें खुदा बड़ा अच्छा काम करने वाला है, बड़ा अच्छा नौकर है, रूहुल कुद्दस आपका मददगार यानी कि आपका नौकर है। आप उसको ये कहो, रूहुल कुद्दस को कहो, फलां को ये खुदा। आपने किस तरह से, आपको हिसाब देना पड़ेगा इन चीजों का। उसकी अजमत पर गौर करें, उसके जलाल पर, हशमत पर, कुदरत पर, रोब। तो फिर लोग और खुदा की कुर्बत में आएंगे, लोग और खुदा को समझेंगे कि मेरा खुदा कौन है। ये नहीं समझेंगे कि हमने एक गुंगा पहलवान रखा हुआ है खुदा को, एक खुदा को जिन रखा हुआ है, हम जो कहेंगे वो खुदा कर देगा। खुदा कभी भी नहीं करता। यूरोप के लोग इस तरह की दुआएं नहीं करते। आप इस तरह देखो अमेरिका को, कनाडा को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, वो इस तरह की दुआएं नहीं करते जिस तरह की इंडिया पाकिस्तान वाले करते हैं, क्योंकि हाथ से कुछ करना नहीं और सारी बातें खुदा पर डाल देनी है। और आप क्या करना है? ठगियां, फ्रॉड, धोखा, खुदा के नाम पे किसी ना किसी तरह से ठगबाजियां और लोगों को वर्ग लगाया है। ये डरावनी बात है। जब खुदा उठेगा, क्योंकि आप खुदा की मुखालफत कर रहे हैं। नूह के बारे में कहा गया है कि उसके ज़माने में लोगों ने अपना तरीका बिगाड़ लिया। सदूम और मूरा क्यों तबाह हुआ? क्योंकि वहां पर इंसाफ नहीं था। आप इंसाफ करें, बीवी का हक बीवी को दें, बच्चों का हक बच्चों को दे, बीवी अपने शौहर का हक शौहर को दे। बीवी क्या करती है? वो अपने हस्बैंड की इज्जत कभी भाई को, कभी बहन को, कभी दाएं को, कभी बाएं को। बच्चे जो हैं ना माँ की सुननी ना बाप की सुननी, और बाहर फला अंकल बड़ा अच्छा है, फलानी आंटी बड़ी अच्छी है। ये ऐसे जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं इनमें ऐसी बेतरतीबी है कि करते खुद सब कुछ गलत और सारा। ओ मेरे खुदा, ओ खुदा को कहो ये करे, ओ खुदा को कहो ये करे, ओ खुदा को कहो ये करे। ओ खुदाया तूने ये क्या कर दिया? शर्म करो, हया करो, डरो खुदा से। किस तरह के पादरी हैं, किस तरह के मनाद हैं, किस तरह के एवेंजलिस्ट हैं, किस तरह के परीचर हैं। यीशु ने जो किया, शिफा दी, सब कुछ किया आप लोगों के लिए, वो नमूना दिया कि ये आपका काम है, ये करो। आप फिर से यीशु को ही कह रहे हो तू कर। रूहुल कुद्दस ने आपको नमूना दिया, आप फिर रूहुल कुद्दस को कह रहे हो कि ये कर। रूहुल कुद्दस आपको इस लायक करता है कि खुदा के साथ जुड़े रहो, उसकी तारीफ करते रहो, उसके साथ लिपटे रहो। फिर वो आपके अंदर से ये तमाम काम करता रहेगा, क्योंकि वो आपका ईंधन है, वो आपकी पावर है, लेकिन आपका नौकर नहीं है। आप उससे चार्ज हो जाते हो।
جیسے موبائل چارج ہو جاتا ہے، موبائل کا اپنا فنکشن ہے، بجلی صرف چارج کرتی ہے، خدا کی